بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پہ دستک قسط نمبر 12 لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو ہم کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کے نگاہوں نے گزشتہ دن کی طرح کسی دل پسند چہرے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد یونیورسٹی آئی تھی، مگر کل بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، اور آج بھی اس کی نگاہیں مایوس ہو کر پلٹنے لگی تھی کہ درخت سے ٹیک لگائے بہت تحمل سے کھڑے عمر کاظمی نے اس کی تمام تر توجہ سمیٹ لی۔ وہ بے اختیار اس کی طرح بڑھی تھی۔ کس قدر بدتمیز ہو تم عمر! میں تو اتنے دن کے بعد کسی بہت اچھی ملاقات کا سوچ کر آیا تھا، اور تم نے آتے ہی اسرائیلی حملہ شروع کر دیا۔ دھوپ کی شدت سے سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ وہ مسکراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ دوحہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کل کہاں تھے تم؟ تمہیں پتا تھا کہ کل میں یونیورسٹی آ رہی ہوں؟ سوری یار، وہ سر کھجا کر بولا، پھر اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ خود بھی تو ایک ہفتے کی چھٹیاں گزار کے آ رہی ہو۔ میں تو صرف ایک ہی دن نہیں آیا۔ وہ ایک طرف کو چل پڑا تو وہ بھی درختوں کی ٹھنڈی گھنی چھاؤں میں اس کے ہم قدم ہو گئی۔ عمر کاظمی کے ساتھ یوں بے وجہ چلنا بھی اس کی ساری تھکن لمحوں میں مٹا دیتا تھا۔ فنکشن کیسا رہا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دوحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت زبردست، بہت مزہ آیا۔ میں نہیں تھا پھر بھی، وہ امتحان لینے والے انداز پر اتر آیا تو دوحہ نے تنک کر کہا، ہاں تم نہیں تھے پھر بھی۔ یہ ویلیو ہے تمہاری عمر کاظمی سر جھٹک کر متصفانہ انداز میں بولا تو دوحہ کو ہنسی آ گئی۔ تم بتاؤ، اتنے دنوں میں میرے بغیر تمہیں کتنا مزہ آیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ چپ سا ہو گیا، پھر مدھم سے انداز میں بولا، مجھے تو خود زندگی مزہ چکھانے پر تلی ہوئی ہے دوحہ۔ میں کیا زندگی کا مزہ چکھوں گا؟ دوحہ نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا، پھر خفگی سے بولی، شٹ اپ عمر، یوں بزدلوں کی طرح بات مت کرو۔ تو اور کیا کرے، تلوار لے کر زندگی سے جنگ کرنے نکل پڑوں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ دوحہ خاموش ہو گئی۔ ان گزرے 2 سالوں سے وہ بہت بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی ساری شگفتگی اور شوخی کہیں کھوتی جا رہی تھی۔ بلند و دبا دعوے دم توڑ رہے تھے، اور شکستگی اور تھکن اس کے وجود کو گھیراؤ کر رہی تھی۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا؟ دوحہ نے پوچھا تو وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹھوکر سے پتھر اڑاتے ہوئے بے دلی سے بولا، وہی جو پہلے بنتا رہا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گئی تب وہ قدر شگفتہ لہجے میں بولا، دعا کرو دوحہ، مجھے اچھی سی جاب مل جائے تاکہ میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر کے فرض ادا کر سکوں۔ 2 اور تیسری بہن؟ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ عمر کی 3 بہنیں تھیں، ایک اس سے بڑی اور 2 اس سے چھوٹی تھیں۔ تیسری کی شادی ہم دونوں مل کر کریں گے، وہ اطمینان سے کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گلنے لگی تھیں۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں تمہارے لیے عمر، کہ جلدی سے تمہیں اچھی سی جاب مل جائے۔ اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کی خاطر وہ بولی تھی، اوہ ہو، یعنی جلدی سے میں اپنے فرائض سے نمٹوں اور تم میرا سر کھانے میرے گھر آ جاؤ۔ وہ ابھی بھی شوخی کے موڈ میں تھا۔ اچھا بدتمیزی مت کرو، پتہ ہے نا روڈ پر لڑکیوں سے چھیڑخانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ فوراً رکھائی سے بولی، ساتھ ہی دھمکا بھی دیا تو وہ ہنس دیا۔ پھر گرمی کی شدت سے سرخ پڑتی اس کی رنگت کو دیکھ کر دل کو تعصب نے گھیرا تو رک گیا۔ تم پوائنٹ پکڑو اور گھر چلی جاؤ، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ کوئی گرمی نہیں ہے، دوحہ نے بدستور چلتے ہوئے طمانینت سے کہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہارے ساتھ ان درختوں کی چھاؤں میں چلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے راستوں میں تو کڑی دھوپ کا سفر ہے دوحہ، یہ چھاؤں تو فقط وہاں تک ہے۔ اس کے دل گرفتگی سے مسکراتے ہوئے درختوں کے قریب ختم قطار کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے آگے ہر شے کو تپتی سلگتی جھلسا دینے والی دھوپ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ عمر، کبھی تو خوش ہونے اور خوش کرنے والی بات کر لیا کرو، 2 منٹ میں بندے کو فرش پر پٹک دیتے ہو۔ وہ برا مان گئی تھی۔ بندے کو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے، عرش پر خدا ہی کی ذات اچھی لگتی ہے، وہ مدبرانہ انداز میں کہتا ہوا اسے چڑھا گیا۔ عرش یہ کون جا رہا ہے، مگر ہواؤں میں توڑ سکتے ہیں نا۔ اس کی بچکانہ سی خواہش پر عمر نے بمشکل اپنے کہکے کو ہنسی میں ڈھالا تھا، پھر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، تمہیں تو میری صاف گوئی اور پریکٹیکل ہونا اچھا لگتا ہے، کبھی کبھار
अफसानवी बातों से भी दिल को बहला लेना चाहिए उमर काज़मी, ज़िंदगी सहल लगने लगती है। वो जल कर बोली, यानी ज़िंदगी सहल होती हुई नहीं बल्कि लगने लगती है, यानी महज धोखा। जागती आंखों का सपना, अफसानवी बातें करने का मतलब है ख्याली दुनिया में रहना, हकीकत से नज़र चुराना। ये आदत बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाली होती है दोहा, क्योंकि फिर हकीकत का सामना करने की आदत नहीं रहती, और अगर कभी सच्चाई का सामना करना पड़ जाए तो बहुत शाक पहुंचता है। इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप शुरू ही से बहुत प्रैक्टिकल होकर फैसला करें। इसने हकीकत पसंदी पर पूरा लेक्चर ही दे डाला। दोहा ने फाइल सर पर रख कर धूप से बचने की सही करते हुए इसे खशमगीन नज़रों से देखा। वो दांत पीस कर बोली, मैं भी तुम्हारी तरह बेस्ट डिबेटर ही होती तो अभी तुम्हारे इन सब पॉइंट्स की ऐसी की तैसी कर देती। इसके अंदाज अल्फाज से हिफ्स खत उठाते हुए वो हंस रहा था। मजबूरन दोहा को भी मुस्कुराना पड़ा। चलो तुम्हारा गुस्सा ठंडा करता हूँ, वो एकदम से बोला। दोहा ने बाहें उचका कर इसे देखा। आइसक्रीम खिलाता हूँ यार। इसने 2 सालों में पहली बार कहीं बाहर कुछ खाने पीने की ऑफ़र की थी। इससे पहले वो लोग कैफेटेरिया में ही खाने पीने का बंदोबस्त रखते थे। आइसक्रीम, हस्बे आदत इसके मुंह में पानी भर आया। आइसक्रीम में तो इसकी जान अटकती रहती थी, मगर चूंकि पहले कभी उमर के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए वो मुतामिल थी बिल्कुल। और इस बार तुम्हारा पसंदीदा फ्लेवर। उमर ने जैसे इसे ललचाया। उमर, अच्छा नहीं लगेगा यूँ खुलेआम। वो कदर खौफजदा भी थी। यूनिवर्सिटी में उमर इससे सीनियर था। यूं ही फंक्शंस और दोस्तों के दरमियान इससे मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती से बढ़कर जज्बाती पसंदीदगी तक कैसे पहुंची, इसका एहसास दोहा को हुआ था और ना ही उमर को। लम्हा भर में वो दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद भी वो इससे मिलने आता रहता था, मगर यूँ इसकी ऑफ़र कबूल करने में इसे हिचकिचाहट हो रही थी। ओके, दिल नहीं मान रहा तो दफ़ा करो, वो बशाशत भरे अंदाज में बोला। तो वो गैर मुतवक्का तौर पर मान गई। चलो ठीक है, मगर सिर्फ 15 मिनट रुकूंगी मैं। तब वो इसे लिए करीबी रेस्टोरेंट में चला आया। वो इस कदर कॉन्शियस थी कि इधर उधर निगाह दौड़ाए बगैर उमर के साथ सीधी टेबल तक चली आई थी। बहुत मुश्किल काम है ये, कुर्सी पर गिरते हुए वो यूं गहरी सांस लेकर बोली जैसे मीलों का फासला तय करके आई हो। यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी गंवाया ही है तुमने, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। तो वेटर को करीब आते देखकर इसे महज घूर कर रह गई। अपनी और दोहा की पसंदीदा आइसक्रीम का आर्डर देकर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, तो जो इतने अरसे से अंदर ही अंदर कुड़ती रही थी, जताने वाले अंदाज में बोली, चाहे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ के कुछ पाया हो या गंवाया हो, मगर तुम्हारे साथ मैं पहली और आखिरी मर्तबा यहाँ आई हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, वो हारने वाले अंदाज में बोला। फिर शरारत से इजाफा किया, अच्छा तो आखिरी बार सही, शादी के बाद तो आओगी। इसकी बात पर वो झेप सी गई। अच्छी लगती हो यूं शर्माती हुई। वैसे दिलचस्पी से देख रहा था। उमर, अब अगर तुमने कोई बकवास की तो पब्लिक का ख्याल किए बगैर मेरी फाइल तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। इसके अर्तकाज ने लम्हों में हथेलियाँ पसवीर दी थीं। वो इस पर से निगाह हटाते हुए बेसाख्ता हंस दिया था। बेटा ने खूबसूरत फ्लोरिन प्यालों में आइसक्रीम ला कर इनके दरमियान रख दी थी। तब दोहा को ख्याल आया था, ये आइसक्रीम मेरी तरफ से होगी। इसने रोब से कहा। तो चम्मच से आइसक्रीम मिक्स करते हुए वो भवेचका का इस्तफामी अंदाज में से देखने लगा। वो किस खुशी में? जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया। उमर, दांत पीसते हुए मध्यम आवाज़ में बुर्राई। तो हंसने लगा। फिर क्यों हातम ताई की रिश्तेदार बन रही हो? लापरवाही से पूछा। तो वो बोली, क्योंकि मेरे भाई की मंगनी हुई है। तुम्हारे भाई की मंगनी हुई है ना? जिस रोज तुम्हारी होगी तब ट्रीट दे देना, वह नूज़ रसानियत भरी शरारत से कह रहा था। वो ज़िद होकर आइसक्रीम खाने लगी। एक ये ख्याल भी सता रहा था कि नाहक इसकी दावत कबूल कर ली। पता नहीं इसके पास पैसे थे भी कि नहीं, और अगर थे भी तो एक बिल्कुल गैर ज़रूरी काम पर खर्च हो रहे थे। यही पैसे इसके घर की किसी ज़रूरत को पूरा कर सकते थे। इसका दिल बोझल होने लगा। दफातन इसे एहसास होने लगा कि इन दिनों वो ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, और इतनी मेहनत से कमाए रुपयों को यूं किसी शुगल में गंवाना तो सरीहन गुनाह था। नाराज़ हो गई हो क्या? इसकी खामोशी और आइसक्रीम के प्याले में यूं ही चम्मच घुमाता उमर ठिठक गया। नहीं,
वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी, फिर कदरे शगुफ्तगी से मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, अगर मेरी ट्रीट तुम्हें कबूल नहीं तो फिर यूँ करते हैं कि मेरी आइसक्रीम की पेमेंट तुम करो और तुम्हारी आइसक्रीम की पेमेंट मैं कर मेरे ज़ुम्मे। इसकी बात सुनकर चंद सानियों तक वैसे देखता रहा तो पजल होने लगी। चमचा प्याले में रख कर दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए वो रसान भरे लहजे में बोला, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। वो इतनी आसानी से बात की तह में पहुंच जाएगा ये दोहा के गुमान में भी नहीं था। वो गड़बड़ा गई। मेरा ये मतलब नहीं था। मगर वो इसके माजरती अंदाज में से कतई नज़र यूं ही लब भींचे बैठा था। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो सॉरी। वह सरासिम होने लगी। इसकी खुददारी को ठेस पहुँचाने का तो वो कोई इरादा नहीं था। वो हल्की सी सांस भरते हुए मुस्कुरा दिया, बुरा तो नहीं लगा। हाँ, इतना एहसास ज़रूर हुआ है कि तुम मुस्तकबिल में एक किफ़ायतशार बीवी साबित होगी। इसने दफातन बात का रुख बदला तो इसकी तरफ ही देख रही थी, सटपटा गई। जी चाह रहा है कि आइसक्रीम तुम्हारे सर पर दे मारूं। बहुत फजूल बोलते हो तुम। क्या करूं यार, इतने दिनों के बाद मिली हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे बहुत फ्रेश एयर में सांस ले रहा हूँ। वो अजीब से अंदाज में बोला तो कतई तौक़ुफ़ के बाद गोया हुई, कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं होता उमर। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इसकी तसल्ली देने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मेरा सबसे बड़ा सुख ये होगा कि मेरे साथ तुम होगी, मेरे हम कदम, मेरी गम गुसार। तो गम कहाँ होगा उमर, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसने बच्चों की सी मासूमियत से कहा तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था। इस पर इसे टोक भी नहीं पाया, बल्कि रश्क से इसे देख कर रह गया। किस कदर आसान ज़िंदगी गुजार रही हो तुम दोहा, मेरा तुम्हें क्या खबर। और पता नहीं तुम्हें अपने साथ इस कांटों भरी रह गुजर में घसीट कर मैं तुम्हारे से इंसाफ भी कर रहा हूँ कि नहीं। उसकी सोच उसे होने लगी थी। क्या सोच रहे हो, दोहा ने इसे टोका तो गहरी सांस लेना हाल लौट आया। सोच रहा हूँ कहीं मैं तुम्हें भी तो अपने साथ खासदार में तो नहीं घसीट रहा। वो बहुत साफ गोई से बोला तो दोहा ने इसे फौरन टोक दिया, ये मेरी किस्मत होगी उमर, तुम इस बारे में मत सोचो। जितना खुदा ने मेरे नसीब में लिख दिया वो चाहे मुझे किसी झोंपड़ी में मिले या महल में, आई डोंट केयर। मत पर एतबार है तुम्हारा, उमर ने पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया, फिर बोली, बिल्कुल है। खुदा ने जो कुछ किस्मत में लिख दिया है और इसमें से एक ज़रा भी ज़्यादा नहीं हासिल हो सकता। हाँ, ये अलबत्ता फैक्ट है कि जो किस्मत ने लिखा है वो हासिल करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और अगर जो हम चाहते हैं जो किस्मत ने लिखा नहीं, तो वो आम अंदाज में पूछ रहा था, जो किस्मत में नहीं लिखा वो कैसे मिल सकता है। इसने लापरवाही से कहा, फिर कुछ सोच कर बोली, हाँ, इसे हासिल करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करके नाकाम हो जाना बेहतर है हाथ पर हाथ धरने से। कम से कम दिल में कोई खलिश तो बाकी नहीं रहती कि शायद कोशिश करने से ये चीज़ हासिल हो जाती। और अगर कोशिश के बावजूद वो चीज़ ना मिले तो। इसके नकोश पर नरम सी निगाह दौड़ा कर पूछा तो पेपर से होंठ साफ करने के बाद इसे मसल कर प्याले में फेंकते हुए वो लापरवाही से बोली, फिर ये कि दुख तो होता ही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदमी का हर जख्म मुंदमिल हो जाता है, क्योंकि हर शय जैसी कोई शय हो या ना हो मगर इसका मुतबादिल ज़रूर होता है। इसकी बात सुनकर उमर ने हल्की सी सांस भरी, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यानी मेरा भी कोई ना कोई मुतबादिल ज़रूर होगा तुम्हारे लिए। इसकी बात समझने में दोहा को एक लम्हा ही लगा था। वो बेचैनी से इसे देखने लगी। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देने के बाद वो कितने आराम से बैठा हुआ था। आई हेट यू उमर, तुम बहुत बुरे हो। वो दफ़ा तनी ढह गई थी। नीचे लब दांतों तले दबा कर मुश्किल आंसुओं को रोका तो वो भी घबरा गया। अरे दोहा, यार मजाक कर रहा था मैं, ये मजाक करने वाली बात है क्या। वो धीमी आवाज़ में चिल्लाई तो परेशान से इधर उधर देखने लगा। क्या कर रही हो यार, पब्लिक प्लेस पर फैंटी लगवाओगी क्या मेरी। तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। इसकी आंखें नम होने लगीं। इसने कभी तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सोचा और तुम कितनी आसानी से कह गए हो कि मेरे लिए तुम्हारा कोई मुतबादिल हो सकता है। बहुत उल्लू हूँ मैं, यार माफ़ कर दो। बस यूं ही एक फजूल सी बात मुंह से निकल गई। वो बात करके पछता रहा था। तुम बहुत बुरे हो उमर काज़मी,
वो खफगी से पूरे अंदाज में बोली तो मुस्कुरा दिया। फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद बोला, नाराज़ मत हुआ करो, ये चाँदनी खुली खुली चमक तुम्हारे रंग की, ये सर्दियों की धूप सी तपिश तुम्हारे रूप की, ऊपर से यासियत का रंग, हमें तो कुछ जचा नहीं। लबों पे मुस्कुराहटें सजाओ, खुश रहा करो, नाराज़ मत हुआ करो। वो अपने मशहूर कर देने वाले लहजे में दिलकशी के सारे रंग समाये हुए था। बहुत बदतमीज़ हो तुम, एक तो फजूल गुफ्तगू करते हो, ऊपर से खफा भी नहीं होने देते। इसका अल्फाज बहुत पुरअसर थे, तभी तो वो पल भर में अपनी खफगी भूल गई थी। थैंक गॉड, मैं तो समझ रहा था एक और आइसक्रीम का खर्च पक्का है। उमर ने गहरी सांस खींचते हुए दिलचस्पी से इसे देखा था। आइंदा कभी ऐसी फजूल बात कही तो मैं बहुत संजीदगी से नाराज़ हो जाऊंगी। कहो तो कान पकड़ के सॉरी कर लूँ। वो मुस्कुरा रहा था। ऐसी हरकतें मत किया करो जिनकी तलाफी में कान पकड़ने पड़े, तंबीही लहजे में कहते हुए उसने कलाई उलट कर टाइम देखा, फिर से उठने का इशारा किया तो वो वेटर को बुलाने लगा। वो बैग शाने पर डालने के बाद फाइल संभालती हुई उठ खड़ी हुई। दुपट्टे को ठीक करते हुए इसने यूं ही रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर सरसरी निगाह डाली तो दाहिनी तरफ से अपनी से तीसरी मेज पर नजर पड़ते ही इसकी धड़कन रुक सी गई। अब चलो चल भी पड़ो, दोहा क्या फ्रीज हो गई हो? उमर की आवाज़ इसे एक बार की हवास में ले आई थी। हूँ। अपने हाथों पैरों में सनसनाहट महसूस करते हुए इसने उमर की तरफ देखा। चलो, वो अपनी नशिश छोड़े खड़ा था। वो मन मन होते कदम व मुश्किल उठाती इसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी तो इसे अपनी पुष्ट पर मोहित हसन की निगाहों की तपिश बहुत अच्छी तरह महसूस हो रही थी।